Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are well and everyone is fine at home. Children, as I always suggest you, so today also I am suggesting you all to work very hard. Make a proper timetable, make a proper time management and work accordingly. Children, we are discussing about the practical. Okay. In practical, we had discussed the administration and the conduction part. मैंने आप सभी को ये एक्सप्लेन कर दिया कि आपको प्रैक्टिकल कैसे एडमिनिस्टर करना है और कैसे कंडक्ट करना है. Then some of the theoretical part means writing part, what you write in your practical file, that I also discuss with you somewhere. Okay, 50% I had discussed with you कि what you will write down in your writing part. Some of the things are left which we will discuss here. Before moving to the next one, I want to make a quick review of the previous one, like what are the things you will write down in your practical file. So first one is the title, page, then problem or aim, then introduction. In introduction, you will write down about what is learning, what are the features of learning, then what is verbal learning, and somewhere topics you will write down from the full marks. Then children, after this one, you have to write down about hypothesis, variable, then about the subject, then material required, and then come the procedure. In procedure, the first thing which you have to write down is rapport formation. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया कि rapport formation में what you will write down in the rapport formation, आप उसमें क्या लिखोगे. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि rapport formation में आपका कंटेंट क्या होगा. तो उसमें आपका कंटेंट होगा, द सब्जेक्ट वॉज कॉल्ड टू द साइकोलॉजी रूम एंड मेड टू फील कंफर्टेबल. He or she was told that a very simple activity would be carried out and there was no need to be anxious. The subject was assured that the results would be kept confidential. So this was the content which you write down in your rapport formation. After the rapport formation, तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट सब हेडिंग, इट इज द इंस्ट्रक्शन. आप इंस्ट्रक्शन क्या देंगे एंड व्हाट यू विल राइट डाउन इन द इंस्ट्रक्शन. ओके, इंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे और क्या दोगे इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन आप देंगे, यू विल बी शोन टू लिस्ट. आप सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दोगे और ये आप रिटेन में भी लिखोगे दैट यू विल बी शोन टू लिस्ट. लिस्ट ए हैविंग द नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स एंड लिस्ट बी हैविंग द मीनिंगफुल वर्ड्स. You will be shown each word for 10 seconds. You will be shown each word for 10 seconds. Then you will be given 1 minute to write down the words that you remember in any order. The most important point ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने उसको कार्ड्स शो किए हैं तो वो उसी ऑर्डर में ही वर्ड्स बताए. वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है. The subject is not bounded. The subject has the freedom to write down all the words in any order.
Then you will be given 1 minute to write down the words that you remember in any order. However, the trials will continue till you will be able to recall all the words correctly in 1 minute. ये आपका इंस्ट्रक्शन होगा. ये इंस्ट्रक्शन आप सब्जेक्ट को दोगे और ये आप अपने फाइल में भी लिखोगे. आपने सब्जेक्ट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको मैं मेरे पास दो लिस्ट है. एक लिस्ट है मीनिंगफुल वर्ड की और एक लिस्ट है नॉन मीनिंगफुल वर्ड की. पहले मीनिंगफुल वर्ड्स मैं आपको शो करूँगा और हर एक वर्ड में 10 सेकेंड के लिए शो करूँगा. आपको उसे देखना है और देखने के बाद ऑल द 15 वर्ड्स है मीनिंगफुल मीनिंगलेस में और मीन्स कह सकते हैं नॉन मीनिंगफुल है और 15 वर्ड्स मीनिंगफुल हैं. तो 15 वर्ड्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो आई विल गिव यू 1 मिनट टू राइट डाउन ऑल द वर्ड्स इन एनी ऑर्डर. ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. देन आप क्या करोगे? इन एनी ऑर्डर आप, ठीक है, दे दिया आपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन. फिर सब्जेक्ट उसे ये इंस्ट्रक्शन आप अपने सब्जेक्ट को दे दोगे. फिर आप पूरा 1 मिनट उसको दोगे जिसमें वो सारे वर्ड्स लिखेगा किसी भी ऑर्डर में. इसी तरह आपको ट्रायल्स लेते रहने हैं जब तक कि जो सब्जेक्ट है आपके सारे वर्ड्स ना बोलते, तब तक आपको ट्रायल्स लेना है. अनलेस एंड अनटिल द सब्जेक्ट रिकॉल ईच ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, तो हमें ट्रायल्स लेते रहने हैं जब तक कि सब्जेक्ट सारे वर्ड्स रिकॉल न करते. वी हैव टू टेक द ट्रायल्स. तो ये हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन. सो प्रोसीजर में आपका हेडिंग था रैपोर्ट फॉर्मेशन. रैपोर्ट फॉर्मेशन के बाद इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन के बाद आप दोगे आपका नेक्स्ट सब हेडिंग होगा डिजाइन. डिजाइन मीन्स आपके एक्सपेरिमेंट की डिजाइन क्या है. सो डिजाइन में आप क्या लिखेंगे? यू शुड राइट इट डाउन. द एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन्ड इन अ वे दैट list A of nonsense syllable was first shown to the subject. Each nonsense syllable was to be exposed for 10 seconds and once the entire list of 15 syllable was as possible in 1 minute. This process was to be repeated, was carried for लिस्ट बी ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. ठीक है, डिज़ाइन में आपको यही बता रहा है कि आपके पास दो लिस्ट है और दोनों लिस्ट के वर्ड्स 10 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज किए जाएंगे और फिर उनके बाद आपको 1 मिनट दिया जाएगा जिसमें आप उन वर्ड्स को लिखोगे. तो ये आप डिज़ाइन में लिखेंगे. डिज़ाइन के बाद क्या लिखेंगे आप बच्चों? आपका क्या क्या हुआ प्रोसीजर में? व्हाट यू हैव कंप्लीटेड? रैपोर्ट फॉर्मेशन, देन इंस्ट्रक्शन, देन डिजाइन. अब आएगा कंट्रोल या इसे हम प्रिकॉशन भी कह सकते हैं. कंट्रोल, ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रिकॉशन. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या पॉइंट्स आप लिखेंगे आप प्रिकॉशंस में? प्रिकॉशंस में ये रहता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किन किन बातों को, व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू विल टेक व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट करते समय बच्चों आप क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखोगे? तो सबसे पहले आता है नॉइज लेवल वॉज कंट्रोल. सो यू शुड राइट इट डाउन इन प्रिकॉशन.
प्रिकॉशन में आपका सबसे पहला पॉइंट रहेगा नॉइज लेवल was controlled. ठीक है, नॉइज लेवल वॉज कंट्रोल। नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंड, लाइट वॉज एडिक्वेट। आप लाइट भी देखोगे कि सही है कि नहीं। लाइट वॉज एडिक्वेट। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या आएगा, व्हाट विल बी द थर्ड, टेम्परेचर लेवल इज एट अ कंफर्टेबल लेवल। टेम्परेचर लेवल is at a temperature level is at a comfortable ठीक है, कंफर्टेबल लेवल टेम्परेचर। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने लिखी, नॉइज लेवल वॉज कंट्रोल, लाइट वॉज एडिक्वेट, टेम्परेचर लेवल इज एट अ कंफर्टेबल लेवल, देन it was ensured that the subject was not tired and anxious। ये आपका फोर्थ रहेगा। It was ensured that subject was not tired, it was ensured that subject was not tired and anxious। ये 4 पॉइंट्स, 4 प्रिकॉशंस आप सभी बच्चों लिखोगे। ठीक है, आप देख सकते हो इसे। Okay, I hope you all have written it down. Again, I dictated क्या क्या चीज़ें आपके precautions में आएंगी। Noise level was controlled, light was adequate, temperature level is at a comfortable level, it was ensured that subject was not tired and anxious. Okay, तो हम यहाँ पे हमारा प्रोसीजर खत्म होता है। प्रोसीजर के बाद हम क्या आएगा, हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा स्कोरिंग। आफ्टर प्रोसीजर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा स्कोरिंग। स्कोरिंग हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा। स्कोरिंग में हम क्या लिखेंगे, यू राइट डाउन इन द स्कोरिंग। स्कोरिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, द रिजल्ट्स वर analyzed, the results were analyzed on the basis of the results were analyzed on the basis of the results were analyzed on the basis of the trials. The results were analyzed on the basis of the trials required to recall words, recall
required to recall words from both the list. From both the list. ये आप स्टोरिंग में लिखेंगे बेटा, ठीक है। क्या है? द रिजल्ट्स वर एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू रिकॉल वर्ड्स फ्रॉम बोथ द लिस्ट। यानी स्टोरी में आप ये बताओगे कि आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो बेसिकली आप स्टोरी में अपने यही बता रहे हैं कि रिजल्ट कैसे निकल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल। जो ट्रायल्स आप ले रहे हो वही आपका रिजल्ट है, ठीक है। और ट्रायल्स में क्या कर रहे हैं? आप सब्जेक्ट से वर्ड्स रिकॉल करा रहे हैं और तब तक करा रहे हैं जब तक वो पूरे वर्ड्स ना रिकॉल कर ले। तो दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग ट्रायल्स फ्रॉम बोथ द लिस्ट। तो ऑन दैट बेसिस द रिजल्ट्स वर एनालाइज, द रिजल्ट्स वर analysis of the results were done. So that you write down in your scoring part. So I hope you all have written it down. So I'm going to erase it and I am going to move forward. That scoring के बाद आपका next heading क्या होगा? So what will be the next heading after the scoring? So scoring के बाद आपका next heading है result. ये स्कोरिंग के बाद आप लिखोगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या करेंगे? रिजल्ट टेबल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, you can extend it more here also. ठीक है, रिजल्ट टेबल में क्या रहेगा आपका? आप बताओगे लिस्ट ए, ठीक है, क्या है आपका लिस्ट ए? वो, और इधर नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, कितना लगा आपका। फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन अगेन लिस्ट भी, फिर ब्रैकेट में जो भी लिस्ट है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखा ही हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल, यहाँ पे आपका ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट ए में क्या आएगा? व्हाट विल बी द लिस्ट ए? लिस्ट ए में आपका है नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। लिस्ट बी में क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स। लिस्ट बी में क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स। और लिस्ट ए में क्या है? लिस्ट ए में है नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स और लिस्ट बी में है मीनिंगफुल वर्ड्स। अब इसमें आपको नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स को रिकॉल कराने में कितने ट्रायल लगे वो आप नोट डाउन करोगे, और लिस्ट बी को रिकॉल कराने में कितने ट्रायल्स लगे वो आप। तो ये आपका रिजल्ट टेबल बन जाएगा। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन। आई होप आप टेबल्स अपने बना लेंगे। ये टेबल आप ट्राई टू मेड इट ऑन द वाइट शीट, जो वाइट और ब्लैंक शीट होगी आपकी, आप उस पर बनाना। अब रिजल्ट के बाद क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट हेडिंग आफ्टर द रिजल्ट इज, रिजल्ट के बाद आप क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन।
रिजल्ट के बाद आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब इंटरप्रिटेशन में आपका क्या होगा, क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी इंटरप्रिटेशन में? इंटरप्रिटेशन में जो भी आपका रिजल्ट है बेटा स्टूडेंट्स, उसी को ही आपको पूरा डिटेल में जाना है, उसको ही आपको पूरा इस पोर्शन में अपनी जो रिजल्ट टेबल बनाया उस टेबल को ही पूरी तरह से आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। बेसिकली रिजल्ट टेबल जो है एक तरह से क्वांटिटेटिव फॉर्म में बना है, क्वांटिटेटिव डेटा है, और ये जो इंटरप्रिटेशन हो जाता है एक तरह का क्वालिटेटिव डेटा होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, ये रिटन होता है। तो इसमें आप पूरा अपने जो रिजल्ट टेबल है आपका पूरी तरह से आप उसको इसमें डिस्क्राइब करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप इसमें? आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शन and ensuring that subject had understood the experiment it was conducted. The subject was shown in list A of nonsense syllable and the trials were taken till the subject was able to recall the words in the given time. Similarly, list B of meaningful words were shown and 1 minute was given to the subject to write down the words, and the trials continued till the subject was able to recall all the words in 1 minute. After the trial, the result have been found that the number of trial taken for the non-meaningful word is this, and the number of trial taken for the meaningful word is this. So this content you will write down in interpretation. Okay children, I hope interpretation तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन के बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। व्हाट यू विल राइट इन दिस वन? इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें क्या रहेगा? इसमें आप इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में ये जो वर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव, ये बना है इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रिमेंबर्ड, सो इट इज द फर्स्ट मेथड विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड जो थे वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। ही इज नोन टू बी एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड ही established the first psychological lab in Germany in Leipzig University in 1879, and at that time he used the method of introspection. Introspection में subject अपने बारे में खुद बताते हैं। The subject used to tell about himself and herself. Similarly, in this practical also we take an introspective report from the subject. हम लोग सब्जेक्ट से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेते हैं, सब्जेक्ट से पूछते हैं, एंड दिस वाज टेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है तब हम ये लेते हैं। और हम सब्जेक्ट से पूछते हैं कि उसको कैसा लगा, उसको कैसा फील हुआ, how he or she liked the practical, whether he or she liked the practical or not, how was the experiment, उसको कैसा फील हुआ। Basically it is I can say that it is the overall experience of the subject throughout the experiment. एक्सपेरिमेंट के समय और एक्सपेरिमेंट से पहले या एक्सपेरिमेंट करते समय उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिकल को लेके, वो बताता है। और वही चीज़ हम लोग इसमें लिखते हैं, एज इट इज़ इन द सेम लैंग्वेज द सब्जेक्ट हैज सेड।
जो जिस तरह से सब्जेक्ट रिपोर्ट करता है उसी तरह से सिमिलरली हम लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट ने रिपोर्ट किया हम लोग उसे एज इट इज़ वैसे ही लिखते हैं। जैसे इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में आप ये लिख सकते हो, लिखोगे कि सब्जेक्ट फाइंड द प्रैक्टिकल वेरी इंटरेस्टिंग, he or she reported that it was very easy, the subject was very excited, reported that he or she was very excited. Okay, so all that you will write down in the introspective report. So I hope children आपको इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में क्या लिखना है ये समझ में आ गया होगा। आप इसमें लिखोगे कि सब्जेक्ट हैज़ रिपोर्टेड दैट, फिर उसके बाद आप ऐसे लिखने के बाद द सब्जेक्ट हैज़ रिपोर्टेड दैट, फिर देन यू मेक अ कॉमा एंड देन इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा यू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी स्टेटमेंट सब्जेक्ट का रहेगा वो एज इट इज़ वर्ड में आप नोट डाउन करेंगे एंड देन यू क्लोज इट विद द डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये आपका इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होगा। बस हम लोग वी आर अबाउट टू ओवर द प्रैक्टिकल नाउ। हम लोग आज अपना प्रैक्टिकल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। आपकी क्या नेक्स्ट हेडिंग है? ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में चिल्ड्रन आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने सब्जेक्ट में वो आप नोट डाउन करोगे। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, ये आप नोट डाउन करें। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव में तो सब्जेक्ट खुद बताएगा उसे क्या फील हुआ, क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ये आपका पार्ट है, आप बताओगे, आप देखोगे जब वो प्रैक्टिकल कर रहा होगा तो वो आप देखोगे वो कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था। तो दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिखोगे क्या, जैसे आप लिखोगे इसमें आई ऑब्जर्व द सब्जेक्ट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, आई फाउंड दैट सब्जेक्ट लाइकिंग द एक्सपेरिमेंट एंड वेरी एक्साइटेड टूवर्ड इट एंड द सब्जेक्ट वॉज अदर आपका सब्जेक्ट इंटेलिजेंट है, लाइक अगर उसके ट्रायल्स उसने बहुत कम लिए हैं सारे वर्ड्स को रिकॉल करने में। तो आप ये भी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में नोट डाउन कर सकते हो कि माई सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटेलिजेंट, माई सब्जेक्ट हैज़ टेकन अ लेसर नंबर ऑफ ट्रायल, बहुत ही कम ट्रायल में मेरे सब्जेक्ट्स ने सारे वर्ड्स बता दिए। तो जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा एंड इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि किसी के भी सब्जेक्ट सेम नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आपका अलग बनेगा, सबका सेपरेट बनेगा। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स इज नॉट सेम, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इज नॉट सेम। ठीक है, इंटरप्रिटेशन इज नॉट सेम। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी सभी की, बट फ्रॉम द रिजल्ट पार्ट आप सभी के प्रैक्टिकल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन। लास्ट है कंक्लूजन, आप जिसमें अपने एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करोगे, एंड करोगे। क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? सिंस द सब्जेक्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स टू रिकॉल नॉनसेंस सिलेबल वर मोर देन द नंबर ऑफ ट्रायल टू रिकॉल मीनिंगफुल वर्ड, द हाइपोथेसिस इज वैलिड। आप अपने कंक्लूजन में बेसिकली ये लिखा जाता है कि हाइपोथेसिस जो है वो वैलिड हुई। क्यों? क्योंकि इसमें ये मेंशन होता है कि आपने हाइपोथेसिस ये बनाया था बच्चों कि मीनिंगफुल वर्ड्स जो होंगे उनमें कम ट्रायल्स लगेंगे और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स में ज़्यादा ट्रायल। द मीनिंगफुल वर्ड टेक अ फ्यूअर नंबर ऑफ ट्रायल इन कंपैरिजन टू द नॉन मीनिंगफुल वर्ड। तो यही चीज़ आप अपने कंक्लूजन में लिखोगे कि दस आई कैन से दैट माई हाइपोथेसिस या आवर हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, आवर हाइपोथेसिस इज वैलिड। ये आप किसमें लिखेंगे? कंक्लूजन में। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। अब आपके बाद इसके बाद आपका सबसे लास्ट हेडिंग रहेगा रेफरेंसेस। यहाँ पे आप रेफरेंसेस लिखोगे।
रेफरेंसेस का मतलब होता है कि कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशंस मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका प्रैक्टिकल ओवर। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया। ट्रांजैक्शन मैंने समझाया, एडमिनिस्ट्रेशन समझाया, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या क्या पॉइंट्स आप अपने फाइल में लिखोगे। आपकी फाइल में सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट पेज होगा, देन एक्नॉलेजमेंट पेज होगा, देन इंडेक्स पेज होगा, देन आपका टाइटल पेज होगा, और फिर आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे। एंड इट गेट ओवर ऑन रेफरेंस। हर एक पेजेस पे आप पेज नंबर नोट डाउन करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिस्ट जो बनेगी मैं वो आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि कौन सी लिस्ट आपको बनानी है। व्हाट आर द वर्ड्स विल बी देयर, जिससे आपको कार्ड्स बनाने हैं। लिस्ट ए, लिस्ट बी। दिस इज एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया। ऑलरेडी मैंने ये लिस्ट आप सभी के पास भेजी है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हो लिस्ट ए ये नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स हैं और लिस्ट बी इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड। इसी तरह से हर एक वर्ड्स को, लाइक बैग को, आप एक स्क्वायर शेप के कार्ड्स पे लिख लोगे और इसी कार्ड्स को आपको 10 सेकेंड के लिए सब्जेक्ट को शो करना रहेगा और फिर 1 मिनट पूरा दोगे आप उन वर्ड्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ओवर हो गया। आई कैन कंसिडर कि मैंने एक्सपेरिमेंट 1 आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई जस्ट होप यू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल एज सून एज पॉसिबल। Thank you so much for continuously observing and listening to me.